today I stand here not just on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, but I stand for every single Jawan, for every single officer of the Central Armed Police Forces to oppose the CAPF Bill 2026 with all my might. I speak for those CAPF officers who are killed in action and denied the tag of a martyr. This government insists on calling them operational casualties. I speak for those officers who are recruited through the UPSC, just like IPS, who guard 15,000 kilometers of India's borders, serve in conditions that rival active warfare from Ladakh's frozen heights to Chhattisgarh's jungle, respond as a first line of command to every terrorist operation. They have no fixed duty time, no guaranteed family postings, no compensatory leave, and they handle the full spectrum of national security threats from Jammu and Kashmir to Manipur. Disaster relief duty, they are there. After every national calamity. Election duty, they are there. There have been 128 plus officer-level deaths. Number of Jawans has been spoken by my colleague Dharmendra Yadav. 128 plus officer-level deaths across all CAPFs in combat and operational duties in the period 1990 to 2025. 217 plus permanently disabled officers whose disability pensions now you're also taxing. It is their voice which the government has consistently refused to listen to in the past 15 years. It is their voice which is resonating through all our voices in this house today. It is these officers whose this government has refused to consult, who you have refused to consider as stakeholders. You've aggressively fought them in the courts for the past 15 years. Even after losing case after case to them, you are still not willing to do the right thing. Let us understand first the history of the CAPF in India and where the problem lies, where the root of the problem is, and why the government is bringing in this bill now on the back of a Supreme Court judgment which they lost and a failed review petition which went against the MHA in February 26 and an upcoming contempt petition next week. We know most commonly of the 5 CAPFs, but actually there are 7 CAPFs. There were 7 paramilitary forces set up in India in the 150-year period between 1835 and between 1984. And they're all covered under the Ministry of Home Affairs. The oldest is the Assam Rifles, set up in 1835 as the Kachar Levy. It's responsible for the Indo-Myanmar border and for counterinsurgency. This is the only one with a 2-tiered command. So its operational command is under the Ministry of Defense, and it is headed by a Lieutenant General rank army officer. Administrative command is by the Ministry of Home Affairs. Then this was followed by the Crown's Representative Police in 1939, later renamed as the CRPF in 1949. This is the largest force, 3.3 lakh force, and it is responsible for internal security and anti-Naxal operations, and it even contains the specialist unit Cobra. Then came the 3 forces guarding our borders. First, the Indo-Tibetan Police, ITBP, set up after the 1962 Chinese War to guard the Sino-Indian border. The Sashastra Seema Bal was set up in 1963 for the Indo-Nepal and the Indo-Bhutan border. After the Indo-Pakistan War, the BSF was set up in 1965. And today it also helps the army and the CRPF in counter-insurgency operations. सुरक्षा बलों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग करके कैसी समस्या उत्पन्न की जाती है। 2 जून 1995 का लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस कांड, 31 मई 1995 को मान्यवर काशीराम जी ने तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापसी का लेटर लिखा था, और वो लेटर भी मेरे पास अगर कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि SC ST के ऊपर होने वाली कंसिस्टेंट एट्रोसिटीज और सरकार के द्वारा कोई सुनवाई न होने के कारण, और उन्होंने यह भी लिखा कि भयंकर रिगिंग पंचायत चुनावों में होने के कारण हम उस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। और उन्होंने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी की डिमांड की, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु इसके बावजूद CISF जो लखनऊ में थी वो नहीं पहुंची। 2 जून 1995 का वो वाकया है। उस समय उनका एक संदेशवाहक लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्रा जी के पास आया, अटल जी से बात की गई, उन्होंने भी नरसिम्हा राव जी से बात किया, तो कहा गया CISF की यूनिट तो है लखनऊ में,
मगर वो मुहर्रम के ताजिए की खिदमत में लगी हुई है, इसलिए तत्काल पहुंचना मुश्किल होगा, उसमें कुछ घंटे लगेंगे। और उस समय वातावरण यह था कि वो कुछ घंटे बहुत भारी पड़ने वाले थे अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं पहुंचते, क्योंकि यूपी पुलिस का जो रवैया था वो बहुत साफ सबको दिखाई पड़ रहा था। मगर क्या बताएं सभापति महोदया, उस समय अपनी जान पर खेलकर हमारे तत्कालीन नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर गए और तब जाकर वहां पर मायावती जी की जान बचाने की स्थिति बनी। अगर समय रहते हुए सीआईएसएफ को भेज दिया गया होता तो यह परिस्थिति नहीं होती। मगर क्या बताएं, इधर बसपा के दलित विधायकों के जनाजे निकलने की बात हो रही थी, पर सीआईएसएफ जो था वो ताजिए की यात्रा की खिदमत में लगा हुआ था। और वैसे मैं थोड़ा सा विषांतर होते हुए एक और भी बात कहना चाहूंगा। आजकल खमैनी साहब का बड़ा नाम लिया जाता है, जो शियाओं के धर्मगुरु थे, मगर साहब लखनऊ में शियाओं का मुहर्रम का जुलूस निकलने नहीं दिया जाता था, प्रतिबंध रहता था। वो तब शुरू हुआ जब अटल जी की सरकार आई 22 साल के बाद, तब जाके शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलना शुरू हुआ, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों का भी जो प्रयोग है वो धरातल पे तौल के किया जाता है। ये वाला वोट बैंक मजबूत है तो कोई बात, इसमें भी कौन शिया मजबूत है कि सुन्नी मजबूत है उसके आधार पर सीआईएसएफ के डिप्लॉयमेंट को देखा जाता था। अब यहां मैं ये कहना चाहूंगा, आज भी आपने देखा होगा बीएसएफ के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं बीएसएफ की गलती नहीं थी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव भारत में। 2016 में मोदी जी की सरकार ने आने के बाद वहां पर डिमार्केशन किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। अब या तो गांव भारत में है या गांव बांग्लादेश में है, उसके बाद वहां कांटे की बाढ़ लगाई गई। इस कारण से अब इन्फिल्ट्रेशन रुका। मगर एक राज्य है जहां अभी तक भी फेंसिंग नहीं हो सकी है, वो है पश्चिम बंगाल। इसलिए अगर वहां पर बीएसएफ को जमीन नहीं मिल रही है तो मेरे विपक्षी साथियों से मैं पूछना चाहूंगा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए आपके मन में क्या है, यह इस बात से बहुत साफ हो जाता है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चुनावों में 1989 तक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का उपयोग नहीं होता था। टीएन शेषन जी ने इसकी शुरुआत करवाई। पहले लोकल पुलिस यूज होती थी और जब तक लोकल पुलिस होती थी धड़ाधड़ चुनाव जीतते थे। जब से सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस 96 ऑनवर्ड्स डिप्लॉय होने शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो उस राज्य के नहीं होते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन और वो नहीं होता है, उसके बाद से कांग्रेस और हमारे विपक्षी दलों के दिन थोड़ा गर्दिश में आने लगे हैं। क्योंकि पुराने जमाने में जैसे बूथ कैप्चरिंग और अन्य चीजें होती थीं, सीएपीएफ के जवानों के द्वारा वो संभव नहीं होती। और मैं कह सकता हूं कि चुनावी ड्यूटी में हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ने बहुत ईमानदारी, दृढ़ता और तत्परता के साथ काम किया है। आज भी पश्चिम बंगाल चुनाव में यह सवाल उठाया जाता है कि इतनी कंपनीज सीआरपीएफ की क्यों भेजी जा रही हैं। उसका बड़ा स्पष्ट सा कारण है, पहले 6-7 चरणों में चुनाव हो रहे थे, तो एक जगह से कंपनी रहेगी, दूसरे चरण में चली जाएगी, तीसरे में, अब 2 चरण में चुनाव है, तो मानी हुई बात है 3 गुनी अधिक कंपनीज की आवश्यकता तो होगी। इसलिए मैं अपने विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऊपर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की राजनीति से बचने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक फोर्सेस की बात है तो इनके मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में, कल्याण के संदर्भ में ड्यूटी पे मृत्यु के दौरान 25 लाख और अगर एक्शन के दौरान मृत्यु होती है तो 35 लाख की व्यवस्था की गई है। व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले जवानों के जो हताहत जवान हैं उनके बच्चों विधवाओं के लिए 3,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। 2022 में सीएपीएफ पुनर्वास योजना शुरू की गई है। और दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए अगर देखा जाए तो हवाई यात्रा की सुविधा भी की गई है। आधुनिकीकरण के लिए भी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के आधुनिकीकरण के लिए भी कई मैकेनिज्म बनाए गए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल सेंटर बनाया गया है और 2021 में सिटीजन्स फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसके द्वारा 1930 हेल्पलाइन का प्रयोग करते हुए अब तक 17.82 लाख शिकायतें और 5500 करोड़ रुपए जनता के डूबने से बचाए जा चुके हैं।